All right. Very good afternoon to one and all, and welcome to the national webinar. Today in Modern Talk webinar series, we have Dr. Aditya Maheshwari. He's faculty and area chair operations management and quantitative techniques area at IIM Indore. We have our group director, Dr. Puneet Kumar Dwivedi, sir, with us. On the behalf of Modern Group of Institutions, I welcome you all to the Modern Talk webinar series. Our today's topic for the webinar is Career Opportunities in Mathematics in India. Before starting the session, I would like to introduce our organization. Modern Group of Institutions is a leading group of premier institutions in Indore, which is affiliated to RGPD, TAVV, Indore, CBSC, and approved by AICTE New Delhi, NCT, and PCI New Delhi. Modern Group is imparting quality education in the field of pharmacy, management, commerce, and education. We offer more than 8 courses in this field that includes B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharmacy, BBA, MBA, BCom, and B.Ed. Modern Group encompasses 2 leading pharmaceutical industries, that is Modern Lab and Nandini Medical Lab Private Limited. Modern Laboratory was established in 1979 by late Shri P.C. Khaya sir. Nandini Medical Laboratory was established in 1998 and both gained prestigious acclamation in the All India rating of pharma industries. We also have the Modern International School, which is established in 2013. We believe in innovation and entrepreneurship. Hence, we introduced the MP's first pharma incubation center, that is Modern Incubation Center, in the year of 2019, which is supported by MSME Government of India. Recently, we have received the World Book of Record UK and World Record Academy USA, largest human image of medication capsule. Also, we are recognized participating institute of Unnat Bharat Abhiyan in association with IIT Delhi and MHRD Government of India. The institute also have the Modern Innovation Council, which is an institute innovation cell by MHRD Innovation Cell. Now, before moving further, I request our group director, sir, to welcome today's resource person, Dr. Aditya Maheshwari, sir. A very good morning, sir. It gives me immense pleasure to welcome our speaker, Dr. Aditya Maheshwari ji. We at Modern Group believe in quality education. In this difficult situation, all students are worried about their career. Therefore, we thought to plan for this webinar, and I think no one better than Dr. Maheshwari will explain in great way. I, Dr. Puneet Dwivedi, Group Director, Modern Group of Institutions, feeling honored to welcome Dr. Aditya Maheshwari ji and all the participants in this national webinar, which is dedicated to COVID, post-COVID era of academics and industry. I welcome you all. I welcome Honorable Dr. Aditya Maheshwari. Thank you so much, sir. Thank you. Before moving further, it is my honor to introduce our guest, Dr. Aditya Maheshwari, sir. Dr. Aditya Maheshwari Dr. Aditya Maheshwari is currently working as a faculty in Operations Management and Quantitative Techniques area at IIM Indore. He teaches various subjects such as probability, numerical analysis, stochastic processes, stochastic calculus, and business statistics at IIM Indore. He receives the Best Teacher Award at IIM Indore in 2018. He completed his PhD from the Department of Mathematics at IIT Bombay in 2017. His research area is stochastic process and its application and has 7 publications in this field. Currently, he holds the responsibility of area chair of Operation Management and Quantitative Techniques area at IIM Indore. Apart from his academics, he enjoys reading religious scriptures and trekking in the Himalayas.
On the behalf of Modern Group of Institutions, I welcome you, sir. Thank you, Professor Neha. Mathematics, sir, always has been a go-to subjects for the parents. And this subject's also considered as a premium branch always. So without getting the delay, I feel honored to have mathematics expert speaker amongst us for the much needed guidance on today's webinar topic, that is the career opportunities in mathematics in India. Now, I would like to request Dr. Aditya Maheshwari, sir, to please start your introductory speech for the webinar. Thank you, Professor Neha and Dr. Puneet, for nice introduction. So, just one clarity: should I continue in English or is Hindi okay? As you feel comfortable, sir. No, it's about audience. How audience? So we currently have more than 110 participants with us, and you can speak bilingual, sir. No issues. Okay. So someone has said in English, Hindi. So I'll try to be bilingual. Bilingual, yes. So today's topic was career opportunities in mathematics. So before going into career opportunities in mathematics, I would like to focus upon what is mathematics. Usually, it is not an unknown thing, but there is a perception among various sections of society about mathematics. तो अगर एक जो मैथमेटिक्स में ट्रेन नहीं है उससे अगर पूछा जाए मैथमेटिक्स क्या है तो उसके लिए है कि 2 + 2 4 होता है, ये मैथमेटिक्स है. तो एक ऐसा ही जब मैं पीएचडी कर रहा था तो जो मेरे दोस्त थे जो मैथमेटिक्स में ट्रेन नहीं थे वो मुझसे पूछते थे कि भाई तू मैथमेटिक्स में क्या रिसर्च कर रहा है, 2 + 2 तो 4 ही होता है, रिसर्च करने से वो बदल थोड़ी जाएगा. तो कई सारे सेक्शंस हैं जो अलग अलग डिग्री ऑफ ट्रेनिंग में रहते हैं जो जिनके लिए मैथमेटिक्स की समझ है अलग अलग होती है. तो कुछ अधिकतर लोगों की ये समझ होती है कि जोड़ना घटाना बाकी ये सब मैथमेटिक्स है. फिर जब Sorry for the interruption, sir. Our participants wants you to speak in English, sir. Okay. So the people who have a little less training in mathematics, they feel that addition, subtraction, multiplication, and dealing with numbers is mathematics. And people who are more trained in mathematics, who have done mathematics till class 10th and 12th, they feel that solving problems, understanding concepts is mathematics. And people who have done BSc graduation in mathematics feel that mathematics is set of theorems, examples, and so on. And then people who have done masters and PhD think that mathematics is a philosophy. So as a philosophy, as a branch of logic. So as the degree of knowledge of mathematics increases, the notion of mathematics also changes. But there is an example I should quote from Upanishads. It is used to explain Brahman, but I'll use it to explain mathematics. That there are 5 blind people. For them, they are brought near to an elephant, and they are asked how this elephant looks like. So one of them pick up a trunk. He said the elephant is like a snake. One of them pick up a leg. He said it's like a log of wood. One pick up the ear of the elephant, and he says that the elephant is like a flap. And the other 2 also pick up different parts of elephant and feel that is the elephant. But the elephant, you cannot say that they are wrong. Elephant has a trunk, elephant has legs, elephant has flap. So the people who say 2 + 2 is mathematics are not wrong. They are correct. The people who say that mathematics is a set of theorems, they are also correct. But the bigger picture is not clear to non-experts. So I would like to focus upon a bigger picture of mathematics. So what is a bigger picture of mathematics? Mathematics is a set of a logical system. So the logical system contains two main parts. The first main part is axiom. I'll explain what is axiom is. So for example, everyone has some background on geometry. So we have some axioms on geometry like 2 parallel lines never intersect each other. This is an axiom because this thing we have neither proved or disproved. We have accepted this as fact, that 2 parallel lines should never
intersect each other. We have not theoretically proved it. We have intuitively accepted this fact that two parallel lines should not intersect each other. Similarly, there are other axioms on geometry. Those based on those axioms. So these are called axioms which are not be proven using these are accepted as facts. It is very intuitive, so we accept this as fact. And then there are set of statements. Like for example, a set of statement is the sum of interior angle of a triangle is 180 degrees. Now this is not an axiom because this can be proved using the set of axioms. For example, two parallel lines never intersect each other. Likewise, there are 5 axioms of Euclid. So other statements can be proved using those axioms. So mathematics consists of 2 things: axioms and statements. And the statements are proved using axioms, using logical inferences. So logic forms a very important part in mathematics, in which axioms, by applying logic on axioms, inference on axioms, we arrive at statements. Like sum of interior angles is 180 degree, opposite angle is equal. If a parallel line is there, then the opposite angle is equal, or sum is 180 degrees. Several things we have proved in this way. The area of the circle. All these are traced back to axioms. So now the crux part is, this is a logical inference. So wherever in our life we find a logical inference, this mathematical system naturally fits into it. So nowadays we are seeing that science and technology are around us. We are doing a webinar, so there is internet. So this is based on science, and science is inherently logical. So therefore, any science cannot avoid mathematics, because mathematics is a system of logic, axioms, and inference. So wherever you will find a logical system, you will find mathematics into it. So there is some impression in the society is that those people who do not like mathematics, कि हम तो mathematics कर लें 10th तक 12th तक और फिर हम उसको छोड़ देंगे. So now the situation is not that, because science is creeping into every subject. Science is there in science, engineering, technology, but now science is creeping into humanities also. Nowadays, people who are doing humanities are doing data analysis. They are collecting surveys. They are making inferences out of it. So wherever there is a logical system, the mathematics will come into it. So people who want to pursue higher studies and do not like mathematics and feel that they can rid of mathematics after getting their basic education in 10th or 12th or whatever their compulsory requirement is, they will get rid of mathematics forever. So it is not the case. It will come again and again at different level to haunt you if you don't like it. Okay, I'll come to this point later, that why it haunts and how it can be avoided. But why it is found in every aspect of life? Because we are inherently, humans are logical as well as emotional. You cannot say humans are only logical. You cannot say humans are only emotional. But the things which we deal using science, technology, and based on logical thing, then mathematics is bound to come. It is an integral part of us. It is not something separate, because logic is integral part of us. So mathematics is a very beautiful expression of it. So it will definitely come into it. So therefore, this notion should be discarded, that mathematics is something different. Wherever there is logic, and so now people are seeing even in psychology, psychometry, forget about engineering, computer science, IT, mathematics is a core part of it. Physics, chemistry, and statistics. So mathematics is there, it will be there, but it is creeping into other field where the logic and the current systems are in place. Now, there is I would like to elaborate this axiom and statement thing. So, those who have done physics up to class 12th might have heard of uncertainty principle, Heisenberg uncertainty principle. So, what is Heisenberg uncertainty principle? That at a particular moment, you cannot determine with great preciseness the momentum as well as the velocity of a particle. So what does this principle implied for physics?
this principle implied for physics is that you cannot know everything. For masses, the implication is that you cannot know everything in physical world. Because if you want to know the velocity of a particle, what you will, please speak in Hindi because logical understanding is comfortable in Hindi. So, okay, I'll repeat this statement in Hindi also. So, mathematics की दो चीजें होती है, axioms और statements. तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा 11th क्लास में या 12th क्लास में. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं कि किसी पार्टिकल की जो गति और उसका मोमेंटम है एक साथ हम डिटरमाइन नहीं कर सकते. इस स्टेटमेंट का इम्प्लीकेशन ये होता है कि हम फिजिकल वर्ल्ड में सब कुछ एग्जैक्टली नहीं जान सकते. वी कैन नॉट नो एवरीथिंग फिजिकल वर्ल्ड बिकॉज if you want to know one thing, then there will be an error in another thing. So ये जो 1920s के अराउंड ये प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग ने दिया था, this has changed the physics radically. उसके पहले ये ऐसा लोगों को लगता था क्लासिकल फिजिक्स करके कि हमने न्यूटन के 3 सिद्धांत जान लिया है तो हम जो है फोर्सेस के बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं. हमने लाइट के बारे में पता कर लिया तो हमें लाइट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा. लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आने के बाद ये चीज क्लियर हो गई साइंस में और लोगों को कि सब कुछ नहीं पता जाता. उसके बाद फिर फिजिक्स में लोग क्वांटम फिजिक्स की तरफ बढ़ गए. तो ये फिजिक्स की बात इसलिए बताई क्योंकि इसी तरह का एनालॉगस स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में आता है. इसी तरह का एनालॉगस स्टेटमेंट इसी तरह का एनालॉगस रिजल्ट मैथमेटिक्स में आता है, जो कि लोगों को थोड़ा कम पता है इसके बारे में क्योंकि चर्चा कम होती है. तो जब मैंने बताया कि एक एक्सियम है और एक स्टेटमेंट है. कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में जल्दी से आऊंगा, पहले मैं इसको एक कवर कर लूं. इसका एक जो मेन फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, तो इससे ऐसा लगता है कि एक्सियम से हम सारे स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हैं या डिस्प्रूव कर सकते हैं. तो ऐसा होगा अगर इफ यू फाइंड सम एक्सियम, इफ यू फाइंड वन स्टेटमेंट विच वी कैन प्रूव और डिस्प्रूव, वी विल कॉल इट स्टेटमेंट. बट तब क्या होगा कि कोई हमें ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए जो गिवन सेट ऑफ एक्सियम से ना प्रूव हो ना डिस्प्रूव हो. अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए जो गिवन सेट ऑफ एक्सियम से प्रूव हो या ना डिस्प्रूव हो, तो वो फिर से एक्सियम बन जाएगा. क्योंकि एक्सियम क्या था, जो हम ना प्रूव कर सकते ना डिस्प्रूव कर सकते, लाइक पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, उस स्टेटमेंट को एक्सियम में बना के लेंगे और फिर जो स्टेटमेंट जो हम ना प्रूव कर सकते हैं डिस्प्रूव कर सकते हैं उसका स्कोप बढ़ जाएगा. तो हम चाहते हैं कि हम सारा स्कोप बढ़ा दें कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ना बचे जो हम ना प्रूव कर सकते ना डिस्प्रूव कर सकते. तो इस स्टेट को कहते हैं कि कंप्लीटनेस, कि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट ना बचे जिसको हम प्रूव कर सके ना हम डिस्प्रूव कर सके. तो हम चाहते हैं हमारा सिस्टम कंप्लीट हो जाए, हमारा लॉजिकल थिंकिंग कंप्लीट हो जाए. लेकिन इसके साथ हम ये भी चाहते हैं कि ऐसा भी कोई स्टेटमेंट ना आ जाए जो प्रूव भी हो जाए और डिस्प्रूव भी हो जाए. This thing we call it consistency. That we don't want a set of axioms by which one statement can either be proved as well as disproved. तो अब हमें सिस्टम में दो चीज अचीव करनी है, लॉजिकल सिस्टम में दो चीज अचीव करनी है. एक कंप्लीटनेस अचीव करनी है, एक कंसिस्टेंसी अचीव करनी है. कंप्लीटनेस की हमें सब कुछ जानना है, कंसिस्टेंसी की हमें लॉजिकल रहना है. तो जो लॉजिकल सोचते हैं, जो जिनको ऐसा लगता है कि दुनिया लॉजिकल है और खास करके गणितज्ञों को ऐसा लगता है, उनके लिए 1930s में एक इसी चीजों पे रिजल्ट एक आया जिसको बोलते हैं गॉडल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम. ये गॉडल ने दिया था, GODEL, गॉडल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम. वो ये कहता है कि अगर आप सिस्टम को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा, आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी. If you want to complete the system, that means if you want a statement which can be proved or disproved, and if you want to complete the system, if you want every statement to be proven or disproven by axiom, then you will inherently encounter a statement which is contradictory. So if you try to achieve completeness, you will lose consistency. If you try to achieve consistency, you will lose completeness. So this is a Heisenberg uncertainty principle in mathematics, that you cannot know everything. So then mathematics have consciously decided that they love consistency more than completeness. That they are happy that some statements are neither proven nor disproven, but they are more unhappy if some statement is contradictory. They don't want a system in which there is one statement which can be proven as well as disproven
by the set of axioms. So they have consciously decided that they will tilt forward for consistency rather than completeness. That's why this is a Gödel incomplete. So it is to be meant that you cannot know everything by logic. There is a space of emotional intelligence also, but there is an ample space for logical thinking also. So wherever there is a logical thinking, there will be mathematics. So this example was just to make you ascertain that everything is not logic due to Gödel incompleteness, and everything is not real, or everything in reality cannot be determined due to Heisenberg uncertainty principle. So this Gödel incompleteness theorem has same implication or similar implication as Heisenberg uncertainty principle had on physics. But apart from all these few philosophical things, the underlying thing is that wherever you will find logic, you will find mathematics there. So now I'll come to the career opportunities. So I have divided this in two things, two parts majorly. One, the persons or the candidates or the participants who have mathematics as allied subject. Second, the participants who want mathematics to pursue as their main subject. So mathematics as allied subject means, I do not Hindi. Okay, I try to be bilingual, sometimes in Hindi and sometimes in English. Or if there is some point which is you want to repeat in main English, you can point out during the question and answer session, and with your preferred language, I will try to do that. I'll not try to take full 1 hour for my monologue. This will be a dialogue, but let me complete my first introductory. Then we'll come to our Q&A. And I would like to make it more interactive. So just reserve your questions for the later part, as well as the language of the particular point you want to. So allied subject means, allied subject means जिनके पास गणित कंपलसरी है 10th तक, और जिसने गणित 12th तक ले ली है, या कोई जो बीटेक कर रहा है उसके पास गणित 1 साल या 2 साल के लिए है, जिसका मेन प्रोफेशन गणित नहीं होने वाला है, जिसको गणित साइड में पढ़नी है, उसके लिए क्या क्या लाभ है, what are the benefits. So first, so this all this thinking will be derived from the first part of the talk, is that wherever there is logic, there is mathematics. So since logic is very important, it is important in the job sector also. So first of all, those who have mathematics till 12th, be it in commerce, be it in BA arts with maths, be it science with maths, तो उनको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें फायदा होता है. तो पहला, जिनको आर्मी ऑफिसर बनना है, एनडीए में जाना है, अगर उन्होंने 12वीं तक मैथ्स ली है तो उनके लिए एनडीए रिटन एग्जाम क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है. और दूसरा, हमारे इंस्टीट्यूट में ही आईपीएम एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें जो है काफी क्वांटिटेटिव कंटेंट होता है. और ये मैंने पिछले 2-3 साल की हिस्ट्री में देखा है कि जिसने 12वीं तक की मैथमेटिक्स और 10वीं तक की मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से तक पढ़ रही है, उसके लिए ये एंट्रेंस निकालना बहुत आसान हो जाता है. और दूसरा, यहाँ पे आके सर्वाइव करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि मैथमेटिकल कंटेंट आएगा ही आएगा. यू कैन नॉट अवॉइड. देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स who come to IIM Indore thinking that they have joined IIM Indore IPM program and they will learn management, and okay, they got rid of mathematics. So उनके लिए एक शॉक होता है, एक मतलब बुरा शॉक होता है कि we have too much focus on quantitative techniques, particularly in the first 2.5 years. दूसरे एग्जाम होते हैं SCRA, रेलवे का एग्जाम होता है, जिसमें IIT JEE तो होता है, जिसमें मेन सब्जेक्ट sir, can we take maths after passing? As of now, student with biology. No, you cannot take mathematics because our system asks mathematics at class 12th to take mathematics at in graduation. तो दूसरा ये होता है कि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो डायरेक्टली एंट्रेंस होते हैं, जैसे आर्मी में एंट्रेंस हो गया, एयरफोर्स में जो ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं, और 10+2x एंट्री होती है आर्मी में, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग बहुत सारी आती है. एसएससी के एग्जाम होते हैं जो 12th के बाद होते हैं, उसका एक बड़ा सा पोर्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग का. तो दैट लॉजिकल, इफ यू हैव डन मैथमेटिक्स ऑनेस्टली at whatever level you have done, then that logical reasoning, you can excel in that logical reasoning very well at that, if you have done mathematics well up to whatever level we have done. So up to 12th ऐसा होता है. जिसके पास अलाइड सब्जेक्ट है 12th के बाद,
ग्रेजुएशन में, इंजीनियरिंग में या बीकॉम में विद मैथमेटिक्स, उसको एक जॉब एंट्रेंस में काफी एडवांटेज मिलता है उसको। एक मैं उदाहरण बताना चाहूंगा कि जब मैं अपने इंस्टीट्यूट में था, अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रहा था, तो मेरा एक मित्र था मनोज कुमार सिंह नाम का। अभी वो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी देहरादून में फैकल्टी है। तो जब हम दोनों सेमी हॉस्टल में रहते थे, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली नासा में he got an opportunity to do an internship in NASA. So he went to NASA, came back, and he told me one instance by which he got another opportunity for a longer period of time in NASA. He told that he was working on some project. He was doing a PhD in resources engineering, and his background was BSc and MSc mathematics. So the project in which he was working in NASA, they are stuck on some problem. And when he looked at the problem, since with his mathematical training, he has converted a problem into a very simple mathematical thing and then gave their solution. So the essence was that the Cartesian coordinate system need to change to the polar coordinate system. So along with all the context of that project. So, but this has impressed the people there at NASA, and they have they have felt that this person has good potential. He knows very good in mathematics as well as in resources engineering. So they have called him again for the longer period of time for NASA. He went there, completed his PhD, and then joined as faculty at. So his name is Manoj Kumar Singh. So this was an instance where there are some instances which you will not know where, as an allied subject, how mathematics will help. So in graduation, if you have done mathematics, you have good opportunity in job opening. Like you can excel in finance, you can excel in data science, you can excel in actuaries. I have forgot one thing also after 12th, actuarial sciences. The actuarial sciences is a profession where the professional need to assess risk of the insurance products. So they need to create insurance product and risk assessment, calculate the premium. So if you have mathematics, you will greatly excel in the actuarial sciences profession. So you can direct entry is easy, and even after direct entry, your internal appraisal, your internal skills are very easy to upgrade, and you will excel among your office environment very quickly if you have good background of mathematics, because it is logical, and logic will every time come into your life again and again. Okay, and those who have done in masters, so as a light subject in masters, you might have ending up into doing a MA mathematics or MTech mathematics, and by that time you will know how mathematics is crucial. Another instance is that when I was doing my completing my studies, there are several hostel mates who are doing their MTechs and PhD in engineering used to come to me to discuss about the mathematical problem in their particular engineering subject. So they have felt that strong mathematics is needed in all STEM subjects, science, technology, engineering, management, as well as now in humanities also. So this is a brief, and the core concept is wherever there is logic, you will find logic everywhere. Do not ignore mathematics. I will tell you how what are the barriers later on. Do not ignore mathematics, and every time in entrance exam, in office, in your appraisal, in the way you present, the way you interpret data, the way you present data, and secondly, it also offers in your interpersonal skills. That if you have trained in mathematics, then you know how to infer statements. Even in your general talk, you will talk more sense if you have better technique, and then this translate into more being impressive presentations. तो जहां पे भी लॉजिक आएगा, वहां पे ये आएगा आपके ऑफिस में आ जाए, एंट्रेंस एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ये हर जगह काम आती है, तो ये हर एंट्रेंस एग्जाम में होती है। डायरेक्टली नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि इंटीग्रेशन के सवाल आएंगे, हो सकता है लॉजिकल रीजनिंग के फॉर्म में आए, एनडीए में होगा, सीडीएस में होगा, बैंक पीओ में होगा, एसएससी में होगा, तो जिसकी और यूपीएससी सीसैट में होगा। यूपीएससी सीसैट में अगर आपने ग्रेजुएशन तक मैथमेटिक्स पढ़ी है तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, आपको एक सब्जेक्ट पूरा तैयार नहीं करना पड़ता। तो हर जगह ही आएगा। प्लस अगर आपको जॉब मिल गई है
और आप अपनी प्रेजेंटेशंस अच्छी करना चाहते हो, अपने स्किल्स अपग्रेड करना चाहते हो, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो जो थोड़ी सी श्रद्धा रख के थोड़ा सा एफर्ट डाल के जो करते हैं, इनको रिजल्ट मिलेंगे इसमें। अब मेंस उस पे आ जाते हैं कि करियर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट। तो भारत में अभी जो मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट पे काफी अपॉर्चुनिटीज है। तो दूसरा, मैथमेटिक्स पढ़ने का एक नेचुरल मेन प्रोफेशन जो दिखता है वो होता है टीचिंग। अगर आपने 12th तक मैथमेटिक्स पढ़ी है, आपने ग्रेजुएशन तक मैथमेटिक्स पढ़ी है, एमएससी तक पढ़ी है, तो टीचिंग एक नेचुरल प्रोफेशन होता है। यहाँ मैं टीचिंग को प्रमोट या डिमोट या उसको ऐसा नहीं कर रहा हूँ। टीचिंग एक नेचुरल प्रोफेशन है। टीचिंग प्रोफेशन के दो बड़े फायदे हैं। एक तो इन दिस कोविड सिनेरियोस और इन दिस मेगा रिसेशन सिनेरियोस, टीचिंग इज अ प्रोफेशन विच इज सॉर्ट ऑफ रिसेशन रेजिस्टेंट। रिसेशन में सबसे पहले व्यक्ति जो है एजुकेशन नहीं छोड़ता है। वो कार खरीदना बंद कर सकता है, वो घर खरीदना बंद कर सकता है, पर वो अपने बच्चे को पढ़ाना बंद नहीं कर सकता। तो टीचिंग इज सॉर्ट ऑफ अ रिसेशन रेजिस्टेंट। तो अगर टीचिंग एज अ प्रोफेशन होना है तो उसको ये एश्योर होना चाहिए कि भाई उसको उसकी जॉब कहीं नहीं जा रही। और इंडिया में अभी अपॉर्चुनिटीज इतनी है, नए इंस्टीट्यूट इतने सारे आ रहे हैं, कॉलेजेस से लेकर IIT IIM तक नए नए इतने सारे बन रहे, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी। दूसरा एक फायदा होता है टीचिंग प्रोफेशन का कि टीचिंग प्रोफेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू क्लस्टर्स। अगर आप BPO में काम करते हैं या IT सेक्टर में काम करते हैं, तो आपको या तो गुड़गांव में काम करना पड़ेगा, या हैदराबाद में काम करना पड़ेगा, या बेंगलोर में काम करना पड़ेगा, या पुणे में काम करना पड़ेगा। तो कुछ ही 4-5 क्लस्टर है, यहीं आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। फाइनेंस सेक्टर में है तो आपको मुंबई में काम करना पड़ेगा। कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो क्लस्टर में, इंडस्ट्री में आता तो इंडस्ट्री क्लस्टर्स में। लेकिन टीचिंग प्रोफेशन का कोई क्लस्टर नहीं होता कि टीचिंग सब जगह करनी है। तो आपके पास जो इंस्टीट्यूट है, आपको आप ज्योग्राफिकल लोकेशन बाद में जितनी आपने पढ़ाई की, जिस लेवल पे और जिस स्किल सेट से पढ़ाई की है, आप काफी चूज कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट बन के आप टीचर बनते हैं तो आप सरकारी टीचर बन सकते हैं। उसके कई सारे लोकेशंस होते हैं। अगर आपने जो है कॉलेज टीचिंग में आप जाना चाहते हैं तो अलग अलग स्तर के कॉलेज, अलग अलग अच्छे कॉलेज, बुरे कॉलेज, मीडियम स्तर के कॉलेज हर जगह उपलब्ध है, ज्योग्राफिकल लोकेशन में उपलब्ध है। तो ज्योग्राफी जो है, देयर इज नो बाउंड इन अ टीचिंग प्रोफेशनल। एंड थर्ड थिंग, IIT IIMs is also very nicely geographical spread out. There is an IIT in Guwahati also, there is an IIT in Tirupati also, there is an IIM in Shillong also, there is an IIM in Jammu also, Udaipur also. ये हर जगह फैले हुए हैं। तो अगर आप इस प्रोफेशन में जाते हैं तो टीचिंग प्रोफेशन में यहाँ पे दो मेजर एडवांटेज, एक तो रिसेशन रेजिस्टेंट और एक ज्योग्राफिकल लोकेशन, जो आजकल काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अब आते हैं कि 12th तक जिसने मैथमेटिक्स पढ़ी है उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो इंडिया में काफी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं BSc और BMath करने का। एक तो एक दो इस पे डिवाइड कर सकते हैं, एक जो यूनिवर्सिटी से BSc करना चाहते हैं और एक इंस्टीट्यूट से BSc करना चाहते हैं। तो यूनिवर्सिटीज में कई सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है अपने पास। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अपने देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपके आसपास, सब कुछ मैं लिस्ट नहीं कर पाऊंगा। ये इस यूनिवर्सिटी से जाके आप प्योर या तो BSc ऑनर्स का प्रोग्राम कर सकते हैं या BSc PCM का प्रोग्राम कर सकते हैं, मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट पाके। दूसरा, बहुत सारे अच्छे अच्छे अपने पास इंस्टीट्यूट हैं जिसके साथ आप MSc BSc का BA प्रोग्राम बैचलर प्रोग्राम कर सकते हैं, BMath प्रोग्राम। तो उनमें से अच्छे इंस्टीट्यूट में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कोलकाता में है, उसकी एक ब्रांच बेंगलोर में है, चेन्नई में भी है। चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है जिसका 12th के बाद एंट्रेंस होता है। इन दोनों का अलग अलग एंट्रेंस होता है। और अभी IIT बॉम्बे ने भी अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स का प्रोग्राम शुरू किया, IISc बेंगलोर ने भी शुरू किया है। आइजर्स बहुत अच्छे ऑप्शन है जो इंटीग्रेटेड MSc परस्यू करने के लिए, इनका IIT से एंट्रेंस होता है। तो ये हमारे पास एक मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं, IIT, ISI, CMI, जिन पे आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन करने के बाद और जहां जिस स्तर का जैसे जैसे ग्रेजुएशन होगा उसके बाद आपको वैसी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। जिन्होंने ग्रेजुएशन जिन्होंने कर लिया है उनके पास फिर उसके बाद मास्टर्स करने की काफी अपॉर्चुनिटीज होती है। तो इंडिया में मास्टर्स लेवल का मैथमेटिक्स के लिए एक एंट्रेंस होता है, जॉइंट एडमिशन टू MSc, जो IIT में एडमिशन के लिए जाना जाता है।
तो उससे सारे आईआईटी में एक जॉइंट एडमिशन होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईआईटी जैम बोलते हैं। उसमें एंट्री लेके आप जो जितने भी आईआईटीज हैं उसमें जो है डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो एमएससी प्रोग्राम के लिए। कई सारे और भी अलग अलग इंस्टीट्यूट है जो इसका स्कोर जो एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कैट का स्कोर दूसरे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करते हैं, वैसे आप इस कर सकते हैं। जैसे लक्ष्मी निवास मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहां पे भी एमएससी होती है। और भी ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो इसका स्कोर करते हैं। दूसरा, आप डायरेक्ट बीएससी के बाद डायरेक्ट पीएचडी में एंट्रेंस ले सकते हो, तो उसके लिए काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसमें इंटीग्रेटेड पीएचडी होती है। दूसरा ऐसा इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसमें इंटीग्रेटेड पीएचडी होती है। आईआईटी बॉम्बे में भी इंटीग्रेटेड पीएचडी नहीं, हाँ इंटीग्रेटेड पीएचडी अब शुरू हो गई है। और भी बहुत सारी ऐसी आईआईटी, जैसे बीएचयू से कर सकते हो आप एमएससी। तो और बीएससी करने के बाद आपको कॉलेज में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आप जीआरई और दूसरे टोफल एग्जाम देके विदेशों से एमएस प्रोग्राम करने जा सकते हो। पर जहां तक मास्टर्स लेवल मैथमेटिक्स की बात है, इंडिया में बहुत अच्छी होती है मास्टर्स लेवल ऑफ मैथमेटिक्स। तो मास्टर्स लेवल तक इंडिया, अगर आप ग्रेजुएशन आईआईटी और आईएसआई इसके अगर ग्रेजुएशन सोच रहे हैं कि भाई वर्ल्ड लेवल पे अच्छी ग्रेजुएशन कहाँ करें, तो उसके लिए इंडिया से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो आईएसआई से अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आईआईटी बॉम्बे से आपने ग्रेजुएशन कर लिया, एक आईआईटी से आपने ग्रेजुएशन कर ली, तो ऐसा नहीं है कि भाई आईआईटी से अच्छी ग्रेजुएशन आपको बाहर मिल जाएगी। हाँ, आपको इच्छा है तो आप जा सकते हो, पर क्वालिटी वाइज इंडिया में कोई कमी नहीं है। इंडिया इज वर्ल्ड क्लास टिल ग्रेजुएशन, एंड इन मास्टर्स लेवल ऑल्सो यू कैन फाइंड वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन लाइक टीआईएफआर, आईआईटी, सीएमआई एंड आईएसआई। रिसर्च करने के लिए हाँ, अभी इंडिया में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जिससे हम यूएस और यूरोप से compete कर सकें। तो यूजुअली क्या होता है, मास्टर्स करने के बाद एक अगर आपको अच्छी रिसर्च करनी है मैथमेटिक्स में, तो आप विदेश जा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट दैट कि इंडिया में अच्छी रिसर्च नहीं होती, बट या वी नीड टू कैच अप टू वेस्टर्न कंट्रीज फॉर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसर्च, बिकॉज देयर आर सेवरल फैक्टर्स at research level which plagues our research system and so on. And some Western schools are doing well. It's not that पहले ऐसा होता था कि around 5-10 years around 10-12 years ago, you go anywhere in the world which and it is better than India for research. Now it is not like that. So that anywhere in the world has stopped. So now it is restricted to some countries, Europe and in US. So you should not go to some country. It is not against any country in say Ukraine. This is for purpose. Do not use this for naming or shaming any country. But now India has developed into its research potential is developed into that it is now comparable to many countries, majority of the countries in the world. So even if you want to stay in India and do research, there are excellent institutions available, excellent, which are comparable. Yeah, but those number of excellent institutions are limited in quantity. So you may not get admission there, or there are other opportunities which are better than this or comparable with this available abroad. So now the better opportunities are most likely in some Western European countries and in US, and not all schools in US. There are thousands of universities in US. Not all are better than any university in India. So like if you do PhD from TFR or ISI or some IITs, then it is comparable to a world-class work done. ISI Delhi, ISI Kolkata, ISI Bangalore, Chennai Mathematical Institute, IIT Kanpur, IIT Kharagpur, IIT Delhi, Tata Institute of Fundamental Research. So these are very good institutions where you can plan your PhD work. And in PhD also, so after PhD अभी जॉब मार्केट कैसा है उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. In elite institutions like IITs, ISI, job market is good because there are new IITs and new IIMs which are coming, which are in demand of faculty. तो और बड़े इंस्टीट्यूट में फैकल्टी भरना ऐसा नहीं होता कि आपने एडवर्टीजमेंट निकाला, 50 लोगों को भर्ती कर लिया एक साथ, क्योंकि वो 50 लोग मिलते ही नहीं है. So the demand in these institutions usually filled in a gap of 5 to 10 years, because
the output of PhDs and the output of highly skilled people is quite slow. And even in mathematics, the opportunities at master's level and at PhD level is more in statistics and probability. Because there is precisely two reasons there are opportunities more in statistics, because there is short of faculty in statistics. Second, statistics is highly in demand and pay quite a times more from industry. So data science industries and big tech companies like Google, Microsoft, and etc., Infosys, and their research department they demand statistics masters and statistics PhD. Secondly, statistics masters is demanded from the finance industry, banking industry, and there is a demand of statistical officers in government also. There is one example, Indian Statistical Services, ISS. It is they directly recruit MSc statistics people after an entrance exam. So कई सारी जो क्राउड है, कई सारे जॉब सीकर्स है, वो उधर शिफ्ट हो जाते हैं, इंडस्ट्री में चले जाते हैं. तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है. स्टैटिस्टिक्स, इवन इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है. इन 10 years जो अभी से स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पढ़ना चाहता है, उसके लिए फ्यूचर इज एक्सट्रीमली ब्राइट. इवन इन IIM Indore, we feel that there is a consistent demand for good statistics faculty. And the same is true for government sector, the same is true for finance sector, the same is true for banking sector, and the same is true for IT sector also. Risk assessment, insurance sector, there is a good demand for the statistics thing in both master's level as well as at the PhD level. So I think it is now 2:40. I would pause my monologue here and start the Q&A session. Thank you so much, sir. That was really interesting and very informative about the mathematics. Now, without getting the delay, we will start the question answer round, sir. Sure. So currently we have around 190 participants with us, and I will try to sum up all the questions. So my first question, sir, that is, should I start? Yeah, please. The first question is that the mathematics is considered as a most difficult and complex subject, and most of the people have the phobia for it. I include myself also into this. So can you shed some light on it, sir? देखिए, I'll be bilingual on this. मैथमेटिक्स का फोबिया 3 पॉइंट पे आता है. When we start our study till our graduation, there are three points where the mathematical phobia is generated. I'll clarify those 3 points. The first point in class 6th, उसके पहले तक मैथमेटिक्स रहती है, वो 18 + 2 = 20 नंबर्स तक रहती है, उसके पहले तक मैथमेटिक्स. तो जब क्लास 6 में पहली बार सिंबल्स आ जाते हैं, a+b² और जब XYZ ये चीज आ जाती है, तब जो छोटा बच्चा रहता है उसके मन में कंफ्यूजन आ जाता है कि अभी तक तो मैं नंबर पढ़ रहा था, ये X और Y क्या होते हैं. तो ये एक मेजर पॉइंट होता है जहां पर ये पहला फोबिया आता है. उसके बाद फोबिया आना शुरू होता है. आप ये नहीं देखेंगे, बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिनको 5वीं के पहले फोबिया होता है. उनको मजा आता है प्लस करने में, जोड़ने में, बाजार जाएंगे तो माँ के साथ हिसाब करने में, ये करने में उनको बहुत मजा आता है. नंबर से तब तक खेलना होता है उनको. नंबर से हम बचपन से अच्छे भी सिखाते हैं कि 4 एप्पल तो 4 एप्पल दिखा दिए जाते हैं. तो जब ये पहला एब्स्ट्रैक्शन आता है फोबिया, वो आता है 6th क्लास में. तो फोबिया से बचने के लिए इन तीनों पॉइंट्स पर फोकस करना चाहिए, खास करके टीचर्स को, क्योंकि उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस फोबिया से बचाने की. और दूसरा, माता पिता को. अगर माता पिता को ये चीज पता होगी तो वो थोड़ा सा ध्यान रख पाएंगे इस बात का कि इसका फोबिया डेवलप नहीं हो पाए. तो सबसे बड़ा फोबिया आता है जब X इंट्रोड्यूस होता है, जब A इंट्रोड्यूस हो जाता है, B इंट्रोड्यूस होता है, वहां पे फोबिया आता है. द फर्स्ट फोबिया arrives at class 6. The second phobia arrives at class 11th. क्लास 11th में तो आता है जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते रहते 11th पे जाके वो मैथमेटिक्स एक्सप्लोड हो जाती है. कोर्स इतना ज्यादा बढ़ जाता है, वो लोड इतना ज्यादा आ जाता है कि वो संभाल नहीं पाते. True. तो जो 6th के फोबिया
में फोबिया नहीं होता, वो फिर 11th के फोबिया को भी थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं कि हाँ उनको समझ में आ जाता है कि ठीक है थ्योरम से सवाल लगाने हैं, ये करने हैं। तो उस वक्त मैथमेटिक्स इतना एक्सप्लोड हो जाता है, तब भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस स्टेज पे माता पिता की थोड़ी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टीचर की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, क्वांटिटेटिव वाइज ज्यादा चेंज हो जाता है, लेकिन क्वालिटेटिव वाइज 6th क्लास में चेंज होता है जो एक्स इंट्रोड्यूस होता है। मुझे आजकल नहीं पता कि वो 6th में होता है 5th में होता है, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तब मुझे ये याद था, तो इस प्रिसाइसली आप वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट ना हो, लेकिन आसपास इसके आता है। तीसरा फोबिया आता है ग्रेजुएशन में, जब मैथमेटिक्स, जब वाकई में जो आजकल जो पहला जो मैंने मैथमेटिक्स की जो शुरुआत में बताया था कि एक्सियोम्स एंड थ्योरम्स, उसमें मैथमेटिक्स आ जाती है। उसमें क्या चेंज आ जाता है, 11वीं और 12वीं में बच्चे को लगता है कि मैथमेटिक्स मतलब सवाल सॉल्व करना, डिफिकल्ट सवाल सॉल्व करना। लेकिन ग्रेजुएशन में जब मैथमेटिक्स आता है तो उसको वो सवाल नहीं दिखते हैं, उसको दिखती है थ्योरम प्रूफ, थ्योरम प्रूफ, थ्योरम प्रूफ। वो ढूंढता है कि सवाल कहाँ है, सवाल कहाँ है, सवाल का सवाल मिलता नहीं है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है इवन इन आईपीएम, जहां पे बच्चे एक्सपेक्टेशन और बैकग्राउंड डिफरेंट लेके आते हैं। और ये एक मेजर प्रॉब्लम आईआईटीज में भी है, जहां पे बच्चे बैकग्राउंड भी लेके आते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रॉब्लम होती है। इवन इन द बेस्ट स्कूल लाइक आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, मैथमेटिक्स में उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैथमेटिक्स का नेचर चेंज हो जाता है, और यहां पे कोई मदद नहीं कर सकता एक अच्छे टीचर के अलावा। तीसरा जो फोबिया जनरेट, तो तब क्या होता है कि 11th और 12th क्लास में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं होते, सवाल ज्यादा हो जाते हैं। ग्रेजुएशन में क्या होता है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 11th और 12th तक तो ये बताया जाता है कि मैथमेटिक्स मतलब सवाल करना है, लेकिन एक्चुअली में मैथमेटिक्स मतलब कॉन्सेप्ट समझना है। तो ग्रेजुएशन में वाकई में रियल मैथमेटिक्स आती है कि अगर आपको रियल मैथमेटिक्स समझनी है तो आपको जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट समझने पड़े। तो फिर उतना टाइम नहीं बचता कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ के 1 महीने तक सवाल ही कराया जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है, इसलिए वो थ्योरम प्रूफ, थ्योरम प्रूफ, थ्योरम प्रूफ में रह जाता है। इतना होता नहीं है समय, ना सिलेबस में होता है, ना टीचर के पास होता है, और जो लोग पढ़ेंगे आगे मैथमेटिक्स उनको ही बाद में रियलाइज होगा। लेकिन ये 3 मेजर पॉइंट पे जहां पे फोबिया आता है, अगर इन 3 मेजर पॉइंट्स पर माता पिता, टीचर्स ढंग से बताएं तो वो फोबिया को दूर किया जा सकता है। जनरली लोग इस फोबिया वाला सवाल का इसलिए जवाब देते, मैथमेटिक्स टफ होता है, ये होता है, वो होता है। सब ठीक है, सबके पास नेचुरल एबिलिटी होती है, नेचुरल एबिलिटी पे तो किसी को बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस पर कुछ होगा भी नहीं। लेकिन हम कहाँ इंटरवीन कर सकते हैं, हम 3 जगह इंटरवीन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट 5वीं क्लास में तो इतना अवेयर नहीं होता, तो माता पिता और टीचर्स को, इसमें सबसे बड़ा रोल टीचर्स का ही होता है। अच्छा टीचर मिल जाता है तो अच्छी मैथमेटिक्स आ जाती है, बेकार टीचर मिल जाता है तो फोबिया जनरेट हो जाता है। टीचर्स का सबसे बड़ा रोल है, सेकंड है माता पिता का, और उसके बाद स्टूडेंट अवेयर हो जाता है 11th क्लास और ग्रेजुएशन में, वहां पर उसको खुद सेल्फ अवेयर होके, और टीचर तो है ही, उसके बाद सेल्फ अवेयर होके उसको पता ये बता देना चाहिए कि 3 पॉइंट पे फोबिया आता है, उस 3 पॉइंट पे फोबिया है तो उसकी थोड़ी तैयारी कर ले, और पीयर लर्निंग, माता पिता और एक अच्छा टीचर उसको वो दूर कर सकता है। इसलिए ऐसी कोई भी फोबिया वाली बात नहीं है। मैथमेटिक्स का फोबिया किसी को नहीं होता। मैथमेटिक्स का फोबिया लोगों को सिंबल्स के कारण होता है, लोगों को कॉन्सेप्ट के कारण होता है। मैथमेटिक्स का फोबिया इसलिए मैं कह रहा हूं नहीं होता क्योंकि कोई भी नहीं कहता कि मैं लॉजिकल नहीं हूं। हर व्यक्ति लॉजिक को पसंद करता है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो लॉजिकल हो, और अगर वो नहीं भी होता तो वो लॉजिकल बनना चाहता है। तो इसका मतलब वो लॉजिक को प्रेम करता है, तो वो मैथमेटिक्स को भी प्रेम करता है। वो डरता कहाँ है, सिंबल से डरता है। और जहां जहां सिंबल्स आते हैं, जहां जहां कॉन्सेप्ट्स आते हैं, सिंबल और कॉन्सेप्ट्स को, कॉन्सेप्ट से भी वो नहीं डरता, कॉन्सेप्ट को जब सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है तो जो कन्वर्जन के पॉइंट्स आते हैं मेन, वहां पे अगर वो ध्यान दे तो फोबिया नहीं रहेगा। मैथमेटिक्स का फोबिया किसी को नहीं होता, वो सिंबल्स का फोबिया होता है। सिंबल से अगर वो डरना छोड़ दे तो वो ठीक हो जाएगा। Very nicely explained, sir. Thank you so much. The next question is, after this COVID-19, sir, the teaching platform has been changed. So, what are the difficulties teachers and students will face for this practical subject like mathematics? तो पहले मैं स्टूडेंट्स की डिफिकल्टी को बताता हूं कि स्टूडेंट को, देखो पहली बात तो कि ये कोविड सिनेरियो इमरजेंसी सिनेरियो है। दिस शुड नॉट बिकम नॉर्म। ऑनलाइन टीचिंग शुड नॉट बिकम नॉर्म। इट कैन नेवर बिकम
an alternative to classroom teaching, particularly subject like mathematics. This should be clear. This should be clear to everyone. From student perspective, precisely, mathematics लॉजिकल सब्जेक्ट है. लॉजिकल सब्जेक्ट ट्रेनिंग के लिए इंटेंसिटी मांगता है. जब हम कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठते हैं और इंटेंस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो स्टूडेंट का मन भटकता है और नए टैब्स खुलने का काफी चांसेस रहता है, या म्यूट करके वीडियो ऑफ करके काफी चांसेस रहता है कि आपका मन भटक जाए. तो ये एक चैलेंज है. और दूसरा चैलेंज होता है पीयर लर्निंग. ये सब सारे सब्जेक्ट्स के लिए ट्रू है. कोई भी सब्जेक्ट जो है, जितना आप गुरु से सीखते हो, जितना आप टीचर से सीखते हो, जितना एक्सपर्ट से सीखते हो, उतना ही, उससे कम नहीं आप अपने साथियों से सीखते हो. तो ऑनलाइन टीचिंग में साथी होते नहीं है, उस तरह का इंटरेक्शन होता नहीं है, तो वो नहीं सीख पाओगे. टीचर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज रहता है कि क्लासरूम टीचिंग में मैथमेटिक्स में एक्टिव और पैसिव फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे स्टूडेंट्स के चेहरे रियल टाइम में देख के पता चल जाता है कि वो कितना समझ रहे हैं. आधा समझ रहे हैं, 10%, 20%, 30%, 80%, 100%, या बोर हो रहे हैं, सब कुछ आता है उनको. तो ये टीचर्स के लिए काफी चैलेंजिंग रहता है कि वो उनका फीडबैक नहीं मिलता, उनको फेसेस नहीं दिखते. और दूसरा, मैथमेटिकल सिंबल्स को लिखना बोर्ड पे ज्यादा आसान रहता है, तो वो एक चैलेंज होता है. पर अगर इमरजेंसी में हमें यही एक मेथड है, इसको जारी रखना है. लेकिन क्लासरूम टीचिंग और 1-to-1 इंटरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में. इसका रिप्लेसमेंट नहीं मानना चाहिए. Okay. The next question is that what are the advantages and the career opportunities which are available for the students who has chosen mathematics as their specialization? At what level? After 12th or after graduation? I mean, this question I have actually covered. You have covered already, yes. Yeah. So we can take other questions or questions from. Of course, sir. So that the applied mathematics branch has the ample of career opportunities. Kindly guide us about the pure mathematics branch, sir. Pure mathematics branch is also means पहले तो at PhD level जो है मैथमेटिक्स, जैसे प्योर मैथमेटिक्स में हम नंबर थ्योरी ले लेंगे, अलजेब्रा ले लेंगे, और ये कैलकुलस ले लेंगे, एनालिसिस ले लेंगे. इसमें फैकल्टी पोजीशन पे काफी अपॉर्चुनिटीज है. दूसरा, जो नंबर थ्योरिस्ट होते हैं उनको क्रिप्टोग्राफी में उनका बहुत काम होता है. सो इन आईटी इंडस्ट्री दिस एक्सपीरियंस्ड क्रिप्टोग्राफर्स आर इन डिमांड. And I would means there is a comment that means this I wanted to make, that means at overall mathematics we usually try not to differentiate between pure and applied mathematics because they actually feed on each other. Yeah, but since there is a perception of differentiation among the public, so means that we can have. So in pure mathematics also there is ample of opportunities, teaching, cryptography, and means you can basically in टीचिंग में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है. इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे टीचिंग में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं. और एक अच्छा मैथमेटिकल टीचर को कभी भी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी हो, ऐसा नहीं होता है. एटलीस्ट अपने देश में तो ऐसा नहीं होता, ना होने वाला अगले 15 साल में. We have received many questions, sir. I will try to take some of them. An anonymous attendee has asked that many students leave mathematics when they enter their graduation, but later they find it difficult passing the entrance examination for higher studies. What do you suggest them to do? कि देखो, पहला है कि if you are learning mathematics at any level, even if you don't like it, learn it with passion. Even if you don't have passion, try not to lose that opportunity, because वो टाइम जो चला जाएगा, वो टाइम आपको बाद में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा. It is not like that कि जैसे मुझे जर्मन लैंग्वेज सीखनी है और मेरे स्कूल में जर्मन लैंग्वेज कंपलसरी है, मुझे अच्छी नहीं लगती वो, मैंने उसको नहीं सीखा, तो मेरा काम चल जाएगा अगर, और ऐसा जरूरी भी नहीं कि मुझे जर्मनी जाना हो.
पर ऐसा काम मैथमेटिक्स में नहीं चलेगा। स्टूडेंट्स की ये मेंटेलिटी रहती है कि अगर वो मैथमेटिक्स अच्छी नहीं लगी तो छोड़ देंगे, तो हम विल गेट रिड ऑफ इट फॉर एवर। ऐसा नहीं होता, इट्स नॉट अ फॉरेन लैंग्वेज विच कैन बी अवॉइडेड। तो पहले वो अपने मेंटेलिटी को ठीक कर लें, डर लगता कि मैथमेटिक्स बच जाएंगे, 2 पेपर हैं आगे, M1 M2 M3, इसको पास कर लेंगे तो बच जाएंगे, इसमें पास मार्क्स, तो ऐसा नहीं होगा। पहले अगर वो मेंटेलिटी ओपन कर लें अपनी, तो बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे रिसोर्सेस आ गए, फ्री PDF मिलते हैं, फ्री वीडियो मिलते हैं। अगर उनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो उससे जाके रिवाइज करें, पढ़ें। और एंट्रेंस एग्जाम में मैंने बता दिया हर जगह आता ही है, तो वो आना ही है और वो डिफिकल्टी आनी ही है। तो पहले अपना मेंटल ब्लॉक ठीक कर लें कि हम मुझे जो है इससे मैं बच जाऊंगा आगे जाके, ऐसा नहीं होने वाला है। Very true, sir. So would you like to suggest some journals for research work related to mathematics? जर्नल्स की जहां तक बात है, रिसर्च इज अ वेरी स्पेसिफिक टॉपिक। सो एक जर्नल या 5 जर्नल या 15 जर्नल बता देना इज इनसफिशिएंट। इन जनरल जर्नल्स के बारे में रिसर्च पब्लिकेशन क्या होता है, जनरली स्टूडेंट लोगों का क्वेश्चन होता है मैथमेटिक्स में रिसर्च क्या होती है, क्योंकि 2 + 2 तो 4 ही होगा, 5 तो हो ही नहीं जाएगा, रिसर्च करने से क्या होने वाला है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स इज अबाउट मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट्स एंड मोर प्रूफ्स ऑफ दैट कॉन्सेप्ट्स। तो नए नए कॉन्सेप्ट्स जनरेट होते रहते हैं, आप जनरेट करते रहते हो और उनको प्रूव करते रहते हो। तो जो नया कॉन्सेप्ट आप दिमाग में पढ़ते हो आफ्टर डूइंग द लिटरेचर सर्वे, तो आप ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपका PhD में 1 साल या 1.5 साल का कोर्स वर्क होता है। उसमें आप और हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हो, उसमें एक सब्जेक्ट स्ट्रीम को चूज करते हो, उस सब्जेक्ट स्ट्रीम में काफी सारी चीजें सॉल्व करते हो। फिर आपका सुपरवाइजर बताता है कि देखो अब ये पेपर्स इस जर्नल के पढ़ो। वो बहुत स्पेसिफिक होता है। जैसे बड़े बड़े जर्नल्स है मैथमेटिक्स के, तो एनल्स ऑफ मैथमेटिक्स, एक्टा मैथमेटिका, ये एकदम टॉप क्लास जर्नल्स है। और बहुत सारे लो ग्रेड जर्नल्स भी होते हैं, आजकल पेड जर्नल्स भी बहुत आ गए। तो ऐसे कुल मिला के 30-40 हजार ऐसे जर्नल्स होंगे पूरे वर्ल्ड में, टॉप क्लास से लेकर लोअर क्लास तक। तो आपकी रिसर्च एरिया पे डिपेंड करता है, जो आपका सुपरवाइजर बताता है कि जर्नल्स के पेपर पढ़ो। फिर उसमें आप आइडेंटिफाई करते हो एक नया कॉन्सेप्ट इसमें बन सकता है, आपका सुपरवाइजर आइडेंटिफाई करता है, फिर उसको आप जो टेक्निक सीखी उससे सॉल्व करते हो। फिर अंडर योर सुपरवाइजर आप उसको करेक्ट करते हो और सही फॉर्म में प्रेजेंट करके एक जर्नल में भेजते हो। वहां पे रिव्यू प्रोसेस होता है, 2 या 3 रिव्यूअर्स आपके पेपर को देखते हैं, कई महीनों तक वो बैठते हैं, पढ़ते हैं, कमेंट्स देते हैं, और अगर वो कमेंट्स उनके अच्छे होते हैं तो आपका पेपर उसमें छपता है। डिपेंडिंग ऑन योर स्किल सेट, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ योर सुपरवाइजर, लेवल ऑफ योर्स एंड द लेवल ऑफ योर जर्नल, आपकी रिसर्च की क्वालिटी उससे डिफाइन होती है। Thank you so much, sir. Dr. Sangeeta, one of our attendee, has asked, sir, that for a students who is in PG mathematics, other than the teaching and research, what are the other opportunities are there for them, sir? एक मेरा मित्र है जिसने MSc मैथमेटिक्स किया था, अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, IIT बॉम्बे से ही। तो उसके बाद वो 3 साल बैंक में काम करने लग गया। उसने एक एंट्रेंस जॉब एग्जाम था, लोकसभा सेक्रेटरीट वाला, उसकी वो तैयारी कर रहा था। उसके हर 3 साल में नोटिफिकेशन आते हैं। तो उसने MSc मैथमेटिक्स करने के बाद वो एग्जाम देखे, आज वो लोकसभा सेक्रेटरीट में, अभी शायद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में वो सेक्रेटरी है। दूसरा, फाइनेंस इंडस्ट्री में, डेटा साइंस में, बैंकिंग सेक्टर में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, जहां पे डायरेक्टली जो है एग्जाम होता है। दूसरा, आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप इस तरह के लेवल के कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें इसमें अवेलेबल होती है। हायर स्टडीज भी उसमें एक है, आप PhD कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। Okay, sir. It was really nicely explained, and I'm sure all the attendees have received their answers which they have asked into the chat box. We have more than 190 participants with us currently. Those are listening to you, sir. And we have received many questions. Yeah, I am seeing the chat box. Great. We have received one more question, sir, that what are the best system to learn and understand mathematics? What is the best system? System to learn and understand mathematics. देखो, कोई भी सब्जेक्ट, पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स,
जो मैंने अपनी जो मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग में सीखा है, तो सबसे अच्छा सिस्टम मैथमेटिक्स सीखने का होता है कि मैथमेटिक्स बात करने से आती है, मैथमेटिक्स की बात करने से आती है। तो जैसे इंस्टीट्यूट ऐसे ऐसे कोई किसी को ऊपर और नीचे करने वाली बात नहीं है, पर हमें पता है कि इंस्टीट्यूट्स की अलग अलग ग्रेडिंग है, रेटिंग है, कि एक यूनिवर्सिटी का कॉलेज से अच्छा हमारा आईआईटी होता है, आईआईटी से अच्छा पर्डी यूनिवर्सिटी होती है और दूसरा होता है। तो वहां पे जो माहौल देखा है और इनके बीच के जो ग्रेडिंग में जो मैंने माहौल देखा है, ये कि मेन डिफरेंस है बात करने से आती है। जहां पे ज्यादा बात होती है मैथमेटिक्स की, वहां लेवल ऑफ मैथमेटिक्स, लेवल ऑफ लर्निंग ज्यादा होती है। तो ये तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, इससे 90% कवर चीज हो जाती है। दूसरा, एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए मैथमेटिक्स का, और उसको एक अच्छा टीचर मिल जाना चाहिए मैथमेटिक्स का, और दूसरा माहौल, और वो दोनों मैथमेटिक्स में बात करनी चाहिए। और बाकी अगर मैथमेटिक्स को ऐसे सीखना है कि आप कोई अच्छी किताब मिल जाए, कोई अच्छा वीडियो मिल जाए, तो वो तो हो ही, लेकिन पहले दो का कंपनसेशन कभी नहीं हो सकता। और बाकी लोगों को जो सवाल है, आप मेरा ईमेल आईडी शेयर कर सकते हैं उनसे, अगर मैं Surely, sir. करूंगा मैं, Surely. कि उनके जो है सवाल का उत्तर दे सकूं। So nice of you, sir. Thank you so much, sir, for the wonderful session. I'm sure the point which you have been covered is gonna very useful for all of us. Now, I would like to request our group director, Dr. Puneet Kumar Trivedi, sir, to propose a vote of thanks. Puneet Kumar Trivedi, sir, to propose. थैंक यू सो मच सर। विषय है कि इस समय भारतीय गणितज्ञ डॉक्टर आदित्य माहेश्वरी जी से हम जुड़े हुए हैं, और गणित में भारत का बहुत ही प्राचीन और बड़ा ही गौरवमय इतिहास रहा है। अगर हम देखें तो आर्यभट्ट से लेकर अब तक जितने गणितज्ञ देश में हुए हैं, उसी कुल को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर आदित्य माहेश्वरी जी ने अपने व्यूज आज हमारे बीच में रखे हैं, जिसमें लगभग 195 पार्टिसिपेंट्स ने देश के विभिन्न कोनों से, कुछ विदेशों से भी हैं, तो इसमें सुन रहे हैं। और यह हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि आज डॉक्टर आदित्य माहेश्वरी जी का सानिध्य यहाँ मिला है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी पार्टिसिपेंट्स का जो इस सेशन को सुन रहे हैं, और ऐसे अनेक सेशन हम आगे भी करने वाले हैं। एक बार पुनः डॉक्टर आदित्य माहेश्वरी जी को हृदय से धन्यवाद मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑनरेबल। डॉक्टर पुनीत, एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहता हूँ, आपकी अनुमति हो तो। डॉक्टर आदित्य माहेश्वरी जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग हियर सर। एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ, आपकी अगर अनुमति हो तो। जरूर सर, जरूर। डॉक्टर पुनीत ने वो पॉइंट आउट किया, मुझे, मैं अपनी टॉक में भूल गया, कि भारतीय गणित का जो है काफी योगदान रहा है, और भारतीय गणित काफी उच्च कोटि की रही है। आर्यभट्ट और इन लोगों को सब जानते हैं, लेकिन भास्कराचार्य ने जो लीलावती है, और भी माधवाचार्य, केरला स्कूल ऑफ थॉट ऐसा रहा है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो मैं अनइंटेंशनली मेरे से भूल गया। तो आईआईटी बॉम्बे में एक प्रोफेसर राम सुब्रमण्यम करके हैं, वो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, और वो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के पे जो हमारे पुराने गणितज्ञों ने जो काम किया है उसको रिकवर कर रहे हैं, और उनका पूरा ग्रुप रिकवर कर रहा है और उसको मॉडर्न लैंग्वेज में लिख रहा है। तो जिसको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, वो जाके उनका वेब पेज देख सकता है, उनके काम के बारे में जान सकता है। उनके 4-5 स्टूडेंट है, एक उनका स्टूडेंट अभी आईआईटी मद्रास ज्वाइन किया है, और कई सारे उनके ग्रुप है जो उसमें काम कर रहे हैं। इवन मेरी वाइफ भी उनके साथ जो है भास्कराचार्य के फॉर्मूले पर कुछ पे काम कर रही है। तो इंडियन मैथमेटिक्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वो धीरे धीरे हम उसको आगे ला रहे हैं। तो थैंक यू डॉक्टर पुनीत फॉर पॉइंटिंग आउट दैट। Thank you very much, sir. Thank you. Thank you once again. At last, I would like to thank all the attendees and Dr. Puneet Kumar Trivedi, sir, also. All the participants and attendees will get the e-certification within the 7 working days. And you all are requested to fill the feedback link after the host will finish the meeting. Thank you once again. Thank you so much, sir. Thank you.